So hello everyone. Our next lecture would be on sequencing. We are going to see different sequencing models. Okay. Before starting ahead, I will let you know what does sequencing means. The selection of appropriate order in which waiting customers may be served is called sequencing, right? In easier terms, if we have various number of jobs in various machines, right? So how to basically sequence those jobs on these machines so that less number of time is required to for manufacturing, for example, right? या फिर और easier terms में बोलो, suppose we have got n jobs, right? सो मैं एक मशीन शॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ. सो इस मशीन शॉप में एन जॉब्स हैं जिनको परफॉर्म करना है. फॉर एग्जांपल थ्रेडिंग हो गया, टर्निंग हो गया लेथ मशीन पे, राइट. अब और ऐसे 4-5 मशीन्स हैं, करेक्ट. और जॉब्स भी बहुत सारे हैं. सो एन जॉब्स है और एम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स है. सो बेसिकली एन जॉब्स एन एन एम मशीन्स में कॉम्बिनेशन आ गया, ठीक है. सो मुझे ये सारे नंबर ऑफ जॉब्स जो हैं ये परफॉर्म कर ये हर एक मशीन पे कुछ कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस प्रोसेस करना है, ठीक है. मुझे सिर्फ सीक्वेंस डिसाइड करना है हमें कि किस सीक्वेंस में हम उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करें, किस मशीन पे किस जॉब को कब लेके जाएं, सो दैट मेरा जो टाइम रिक्वायर्ड है वो सबसे कम हो. ओके. You will come to know in detail when I am going to explain you a practical example, right? तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा कि एक्चुअली सीक्वेंसिंग होता क्या है. Sequencing में you can see different types of problem. So one by one I will tell you all. The first type of problem that we are going to see is processing of n jobs through two machines. So that means in a machine shop there are two machines, right? And there are more than two jobs, right, which is denoted as n. So and for each job in that particular these two machines there are time which are required, right, for performing those jobs, for basically processing those jobs, right. So how we are going to solve these kind of problems. Similarly, if there are n jobs and we have to sequence in these three machines, right, the other type is through more than three, that means m machines, right. And the last one is traveling salesman problem. So this is very common problem, like the name as it is denotes, like there is a salesman, suppose he has to visit more than maybe 5-6 cities, right. तो उसको एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है. अब बट ऑब्वियसली कि उसको सेल करने के लिए जाना है, राइट. और हर सिटी टू सिटी मूवमेंट करने के लिए देर इज़ सम कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट, राइट. सो कॉस्ट हमें पता है कि कितना कॉस्ट इनकर होने वाला है उस सेल्समैन को फॉर विजिटिंग फ्रॉम सिटी वन टू अनदर सिटी, राइट. तो पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स हमारे पास है. हमको सिर्फ वो मूवमेंट जो है वो सॉल्व करके देना है सेल्समैन को, जिससे कि कॉस्ट जो एसोसिएटेड है वो सबसे लीस्ट कॉस्ट एक्सपेंस हो जो सेल्समैन को इनकर करना पड़े फॉर इन ट्रांसपोर्टेशन, राइट. तो उस तरीके के प्रॉब्लम हम लोग इसमें सॉल्व करने वाले. इसको शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट भी कहते हैं. So I will start with the problem processing of n jobs through two machines, right. So see here the problem. I'll first read the problem. A machine operator has to perform two operations, turning and threading, right. So there are two processes, turning and threading, on a number of different jobs. So there are many jobs. The time required to perform these operations for each job is known. So time required for each job is given. Determine the order in which the job should be processed in order to minimize the total time to turn out all jobs. So we have to determine the order in which the job should be processed, right, so that total time to turn means to manufacture or to process all the jobs should be there, right. I will give you the data which is given. So there are basically 6 jobs, right. So हर जॉब के लिए दो, इन सारे जॉब के ऊपर ये दो प्रोसेस कॉमन है जो परफॉर्म करने हैं. ओके. फॉर एग्जांपल जॉब 1 के लिए, जो जॉब 1 है, ठीक है, उसे अगर हम टर्निंग करते हैं तो जो टाइम रिक्वायर्ड है वो है 3 मिनट्स,
ठीक है। तो ये सारे टाइम जो है ये इन मिनट्स में है, यहाँ पे मेंशन कर देता, ठीक है। उसी जॉब को जब हम थ्रेडिंग करते हैं तो दैट रिक्वायर्स 8 मिनट, राइट। सिमिलरली जॉब 2 के लिए टर्निंग टाइम लगता है 12 मिनट का, थ्रेडिंग टाइम लगता है 10 मिनट का, राइट। सो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमें सीक्वेंस हम कुछ भी फॉलो कर सकते हैं, राइट, पर हमें इस सीक्वेंस में करना है। फॉर एग्जांपल जो सबसे इस हिसाब से करना है कि अगर मैं जॉब 1 को टर्निंग कर रहा हूँ, राइट, तो उस समय जॉब 2 जो है वो दूसरा ऑपरेशन होते रहे दूसरे मशीन पे, राइट। या जॉब 2 मैं थ्रेडिंग दूसरे मशीन पे थ्रेडिंग करूँ, कि जॉब 3 का थ्रेडिंग करूँ, जॉब 4 का थ्रेडिंग करूँ, तो ये कैसा सीक्वेंस हो। अगर जॉब टर्निंग किसी एक जॉब का हो रहा है तो उस समय थ्रेडिंग किसका, कौन से जॉब का करूँ, ठीक है। तो टाइम शुड बी मैनेज इन सच ए वे कि कहीं पे भी कोई मशीन का आइडल टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, राइट। तो वो चीज़ अभी आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल अगर जॉब 1 मैंने टर्निंग, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको जहाँ पे कैसे कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम अगर हमने इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया तो क्या फेस करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जॉब 1 हम मशीन 1 पे लगा दिए, टर्निंग मशीन पे, और टाइम टर्निंग कर रहे हैं, राइट। उस समय इफ़ वी रैंडमली सेलेक्ट मे बी जॉब 6 फॉर थ्रेडिंग, बराबर। सो जॉब 6 थ्रेडिंग कर रहा हूँ जिसके लिए 1 ही मिनट चाहिए। 1 मिनट बाद जब इसका 2 मिनट बाकी है ये कंप्लीट हो जाएगा जॉब 6, राइट। तो यहाँ पे मुझे दूसरा जॉब डालना पड़ेगा विच इज़ जॉब 2, फॉर रैंडमली डालता हूँ। जॉब 2 हो गया, जॉब 2 भी कंप्लीट हो जाएगा तब तक ये चालू है, उस समय मैं जॉब 3 डालूँगा, ठीक, करेक्ट। सो 2, 3 एंड 6 हैव कंप्लीटेड दिस ऑपरेशन, नाउ 4 एंड 5 ओनली रिमेनिंग। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या डालूँ, सपोज मैं यहाँ पे ये जॉब 2 लगा देता हूँ, राइट। अगर मैंने जॉब 2 लगा दिया यहाँ पे, राइट, उस समय देखिए 12 मिनट्स है, उस समय बहुत सारे ऑपरेशन जो है थ्रेडिंग के हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी, आई थिंक आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैं वापस से बताता हूँ, सॉरी फॉर दिस मिसअंडरस्टैंडिंग। सो फॉर एग्जांपल मैं रैंडमली जॉब 1 यहाँ पे टर्निंग मशीन पे लगा देता हूँ विच, और जॉब 2 लगा देता हूँ फॉर एग्जांपल, सबसे ज़्यादा टाइम है तो 12 मिनट्स लेगा, ठीक है। उस समय जॉब अदर जॉब्स में मशीन थ्रेडिंग मशीन पे लगाऊंगा, तो सब फॉर एग्जांपल ये लगा दिया जॉब 6, तो 1 मिनट में थ्रेडिंग हो गया। उसके बाद मैंने सपोज़ 5 लगा दिया, वो 3 मिनट्स में हो गया। उसके बाद सपोज़ मैंने 4 लगा दिया, वो 6 मिनट्स में हो गया, तो 10, स्टिल 2 मिनट्स। सपोज़ उसके बाद मेरे पास सिर्फ एक जॉब बचता है, अगर मैंने वो लगा दिया तो मेरे इतने सारे जॉब्स एक साथ थ्रेडिंग के लिए हो गए, लेकिन उस समय सिर्फ इस पर जॉब 2 चल रहा हुआ, ठीक है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये मशीन पूरा काम कर रहा होगा और ये आइडल हो जाएगा, राइट। तो उस वो ना हो, ठीक है। बोथ मशीन शुड बी वर्किंग एज वेल एज दोनों, तो ओवरऑल जो टोटल टाइम है वो मेरा ऑप्टिमाइज होना चाहिए, कोई एक मशीन खाली नहीं होना चाहिए, राइट। सो उस तरीके से मुझे अलॉटमेंट करना है। सो वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। So सबसे पहले see there are some rules that we have to follow. So I will first dictate the rules for you. You all can note it down, ठीक है। तो पहला रूल क्या है, we have to examine the column for processing times, right. So suppose this is turning machine and this is threading machine. So examine the column for processing times of machine, turning machine as well as threading machine, right, and find the minimum smallest value और minimum of this and this, इसमें सबसे कम क्या है वो हमें फाइंड करना है, राइट। सेकेंड स्टेप, इफ दिस वैल्यू फॉल इन कॉलम 1 और 2, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे मिनिमम में 1, दिस फॉल्स इन द कॉलम 2, राइट, सेकेंड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो सेकेंड कॉलम में आ रहा है तो उसको क्या करना है हमें, उसे हम सीक्वेंस के सबसे लास्ट में लेके जाएंगे, ठीक है। अगर सेकंड कॉलम में मिनिमम वैल्यू फाइंड होता है तो उसे सीक्वेंस के सबसे लास्ट में नोट डाउन करेंगे, और सिमिलरली अगर कोई वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू फर्स्ट कॉलम में फाइंड होता है तो उसे सीक्वेंस के सबसे स्टार्ट में हम लोग नोटेड डाउन करेंगे। तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ सीक्वेंस जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या होता है। देखिए देयर आर फिक्स जॉब्स, तो मैं एक सीक्वेंस का टेबल बना दूंगा,
राइट। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, राइट। अब देखिए मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने स्कैन किया एंड आई फाइंड द मिनिमम वैल्यू दैट आई कैन सी इज दिस, राइट। So this falls in column 2, right? So this is sequence from start to end. If now this job, right, is the minimum value, has the minimum value, right, पर वो मिनिमम वैल्यू कॉलम 2 में आता है, तो ये जो जॉब है ये मैं सीक्वेंस के सबसे लास्ट में डालूंगा। सेकेंड स्टेप, फिर से अभी इसको क्या कर दूंगा, इसको मैं पेंसिल से, अभी व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट स्क्रैच इट आउट on with pencil, right? In exam, for example, you are attempting for any exam, so उस समय आप इसको पेंसिल से स्क्रैच आउट कर सकते हो। अब मुझे वापस से स्कैन करना है। नाउ सी व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, आई थिंक दिस इज इट इज़ 4, राइट, सॉरी 2 इन जॉब 4, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो उसे इनिशियली सबसे इनिशियल में लेना है। कॉलम 2 में जो आ रहा है वो पीछे से शुरू करेंगे, कॉलम 1 में जो आ रहा है वो स्टार्ट से करेंगे। अब इसको भी स्क्रैच आउट कर लेंगे, मिनिमम देखेंगे। सो मिनिमम आ रहा है 3, बट 3 दो बार है। देखिए एक जॉब 1 में 3 आ रहा है टर्निंग का, ठीक है, तो जो जॉब 1 में, और एक दूसरा आ रहा है जॉब 5 जो है थ्रेडिंग का। सो कॉलम 1 में 1 आ रहा है, जॉब 1 आ रहा है, तो कॉलम 1 में आ रहा है मतलब उसको स्टार्ट में लिखेंगे, तो जॉब 1 स्टार्ट में। एट द सेम टाइम टाई है, इस बार ये टाई जो है कॉलम 2 में है, ठीक है, तो उसे मैं लास्ट में लिखूँ, तो 5 जो है लास्ट में आ जाएगा। अगर एक ही कॉलम में टाई अप होता है तो आप आर्बिटरीली यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ दिस जॉब्स, ठीक है। तो ऐसे ही बेसिकली करना है। अभी वापस से बता देता हूँ। अब उसके बाद फॉर एग्जांपल वी हैव स्क्रैच्ड आउट कॉलम नंबर 6 4 1 5, राइट। नाउ रिमेनिंग 2 एंड 3 स्कैन करते हैं। द मिनिमम थिंग वैल्यू आई कैन फाइंड सी इज़ दिस 5, बट कॉलम 1 तो जॉब 3 है, कॉलम 1 में है, तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड से या फिर स्टार्ट से करूँगा, तो आई विल राइट इट डाउन 3, और एक बचे ये 2, राइट। तो वी हैव स्कैन्ड ऑल दी जॉब्स, और ये मेरा सीक्वेंस बना है, राइट। सो माई सीक्वेंस वुड बी दिस। अब मैं आपको एक टेबल बना के एक्चुअल टाइम का सिमुलेशन करके दिखाऊंगा, राइट, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके, सो अब सिमुलेशन का टेबल बनाएंगे जहाँ पे हम लोग टाइम को सिमुलेट करेंगे। ओके, सो जॉब, great, a turning operation, and threading operation. टाइम इन, जबकि वो जॉब सिस्टम में एंटर करेगा, एंड टाइम आउट, जो वो जॉब मशीन, सिस्टम इन द सेंस मशीन, राइट। सिमिलरली थ्रेडिंग के लिए थ्रेडिंग मशीन पे जो जॉब इन करेगा और वो आउट करेगा। सो देर आर 6 जॉब्स, राइट। सीक्वेंस में लिख देता हूँ 4 1 3 2 5 एंड 6 में बाद में आपको दिखाता हूँ, बिकॉज not able to fit it properly in the screen. ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सिमुलेशन चार्ट बना देना है, ठीक है। अब बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए सीक्वेंसिंग इज़ ए वेरी सिंपल टाइप ऑफ ओआर मॉडल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व। सो सबसे पहले मुझे पता है जॉब 4 है, राइट, जो मुझे एंटर करना है सिस्टम में, बराबर। सो जॉब 4 के लिए अगर आपको मैं टेबल दिखाऊं, अगर जॉब 4 पहले आ रहा है सिस्टम में, राइट, तो वो देखिए उसको 2 मिनट्स का टर्निंग टाइम लगता है। सो जॉब 4 आ रहा है सिस्टम में, उसे वो जब, अब हम ये देखिए आप, जॉब 4 के लिए 2 मिनट्स का टर्निंग टाइम और 6 मिनट्स का थ्रेडिंग टाइम, राइट। सो जॉब 4 जैसे सिस्टम में एंटर करेगा,
एक और कंडीशन है, सपोज़ कि पहले आपको टर्निंग ऑपरेशन करना है, सपोज़ ऐसे, उस केस में आप क्या करेंगे, पहले टर्निंग करके फिर उसके बाद थ्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन भी होते हैं, तो हम लोग वो कंडीशंस को भी अज्यूम करके फिर सॉल्व करेंगे, राइट। तो जॉब 4 था, उसको पहले टर्निंग कर लिया, 2 मिनट बाद में उसको शिफ्ट कर लूँगा थ्रेडिंग मशीन पे। थ्रेडिंग के लिए अगर आपको टेबल, अगर आपने नोट डाउन किया, यू कैन सी टर्निंग थ्रेडिंग के लिए 6 मिनट्स है। अगर वो सेकेंड मिनट में थ्रेडिंग ऑपरेशन पे गया मशीन पे, तो वो 8th मिनट पे बाहर आएगा, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं जॉब 1 में। जॉब 1 जो है वो सिस्टम में कब एंट्री करेगा, सेकेंड मिनट पे, राइट, बिकॉज सेकेंड मिनट पे ये मशीन खाली हो गया था, विच इज़ अ टर्निंग मशीन, राइट। सो अज्यूम करके लगते हैं डिफरेंट लेथ था, ठीक है, बिकॉज ये ऑपरेशन अलग अलग, जरूरी नहीं है कि अलग मशीन पे, एक मशीन पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट देर आर मेनी ऑपरेशन विच कैन बी परफॉर्म इन सेम मशीन, राइट। सो अज्यूम करते हैं अलग अलग लेथ मशीन है, वहाँ पे अलग अलग ऑपरेशन होंगे। तो अभी नेक्स्ट जॉब है जॉब 1, ठीक है, सेकेंड मिनट पे एंट्री हुआ इस मशीन पे, ठीक है। जॉब 1 के लिए टर्निंग का टाइम 3 मिनट्स है, तो सेकेंड मिनट पे हो तो एग्जिट कब करेगा, 5th मिनट पे, करेक्ट। और वो इस मशीन पे जो कि थ्रेडिंग मशीन है, इस पे कब जाएगा, ये थ्रेडिंग मशीन तो 8th मिनट पे फ्री हो रहा है, राइट। सो ये 8th मिनट पे एंट्री करेगा इस मशीन पे, बिकॉज ये जॉब 4 ने जो है वो 8th मिनट पे इस मशीन को छोड़ा था, ठीक है। सो हमको बेसिकली क्यूमुलेटिव एडिशन करना है, दैट्स इट। तो अभी जॉब 1 का हमको थ्रेडिंग ऑपरेशन का टाइम देखना, तो जॉब 1 का थ्रेडिंग 8 मिनट्स का था, मतलब वो 16th मिनट पे एग्जिट हो जाएगा थ्रेडिंग मशीन से, राइट। अब जॉब 3 जो है वो टर्निंग मशीन पे आएगा 5th मिनट पे। जॉब 3 के लिए टर्निंग का ऑपरेशन है 5 मिनट्स, सो इट विल एग्जिट ऑन 10th मिनट। यहाँ पे मैं 10 लिख सकता हूँ डायरेक्टली, और ये 16th पे एंट्री होगा, बिकॉज ये 10th मिनट पे बेसिकली फ्री हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे 6 मिनट का आइडल टाइम है, उसको वेट करना पड़ेगा इस मशीन को खाली होने के लिए, राइट। तो 16 मिनट पे एंट्री कर रहा है जॉब 3 के लिए। थ्रेडिंग का 9 मिनट है, मतलब दिस विल एग्जिट एट 25th मिनट, बराबर, आई कैन राइट, बराबर। अब मैं इसको 25th मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ। जॉब 2 है, उसके बाद जॉब 2 का टाइम आउट देखते। जॉब 2 को 12 मिनट टर्निंग लगने वाला, तो दिस इज बेसिकली 22, राइट। तो अभी देखिए आइडल टाइम कैसे कम हो गया, 25th मिनट पे ये एंट्री करेगा 22, ठीक है। तो ये होता है सीक्वेंसिंग का एडवांटेज। देखिए आप आइडल टाइम धीरे धीरे कम होने वाला है, 25th मिनट पे एंट्री करेगा। अब ये एग्जिट कब करेगा, तो थ्रेडिंग का टाइम देखते हैं जॉब 2 का जो है 10, तो बेसिकली 35 पे एग्जिट करेगा। 35 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे 22। अब जॉब 5 के लिए टर्निंग का टाइम देखना है हमें, तो जॉब 5 के लिए टर्निंग का टाइम है 9 मिनट, तो 22 और 9, 22 और 9 कितना हो जाता है, 31, राइट। अब ये देखिए 35th पे 4 मिनट का आइडल टाइम है यहाँ पे। 35th पे जॉब 5 एंट्री होगा थ्रेडिंग मशीन पे, और वो 3 मिनट का टाइम कंज्यूम करेगा, मतलब वो 38 पे एग्जिट हो जाएगा। तो 38 यहाँ पे लिख देता हूँ, 31 यहाँ पे। जॉब 6 जो है, ठीक है, वो टर्निंग मशीन पे एंट्री करेगा 31st पे, और एग्जिट करेगा 11 मिनट्स का टाइम लेगा, मतलब 42 पे एग्जिट करेगा, राइट। अब देखिए ये क्या है, ये 38 यहाँ पे है। सो अभी आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे कि ये 42 मिनट्स पे एग्जिट करेगा, और यहाँ पे 38 मिनट पे ये काम हो गया पूरा मशीन 2 का। तो 38 मीन्स ये ऑलमोस्ट 4 मिनट्स पहले मशीन 2 खाली हो गया, राइट। सो बेसिकली नाउ यू कैन सी, अब 38 पे खाली हो गया, तो मैं 38 पे 6th और जॉब डाल नहीं सकता, बिकॉज 38 मिनट पे यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रहा है, राइट। तो ये जाएगा 42 पे ही, ठीक है। और एग्जिट कब होगा, जॉब 6 का 1 मिनट लेने वाला, मीन्स 43 पे वो एग्जिट हो जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ बेसिकली सीक्वेंसिंग थियोरी और मॉडल वर्क्स, राइट। वेरी सिंपल इन नेचर, ठीक है। एन जॉब और 2 मशीन्स पे अगर हमें सीक्वेंसिंग करना है, तो हमें सिर्फ स्कैन करना है मिनिमम वैल्यू के लिए। अगर वो कॉलम 1 में है तो उसको स्टार्ट में रखना है, और कॉलम 2 में है तो उसे पीछे से बेसिकली सीक्वेंस में लास्ट में डालना है,
correct. तो in this way we have to basically perform this type of problem. अब हम आ जाते second type of problem which is processing of n job through 3 machines, right. ये भी अभी फटाफट complete कर लेते हैं इसी वीडियो में. So I will give you an example. So guys, the question is like this: there are 6 jobs again, right. The turning time, basically there are 3 times given for these 3 operations, right. तो 3 ऑपरेशन है अलग अलग मशीन पे होने वाले, मशीन ए बी एंड सी, ठीक है. तीनों के टाइम, जॉब 1 जो है टर्निंग के लिए 3 मिनट्स लेगा, थ्रेडिंग के लिए 8 मिनट्स और नॉलिंग के लिए 13 मिनट्स, राइट. तो ये 3 मशीन्स, प्रोसेसिंग ऑफ n जॉब ऑन 3 मशीन्स, राइट. तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है उनको कैसे सॉल्व करना है. अब ये जो हैं ये थोड़े से डिफ़िकल्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हैं. सो फॉर सॉल्विंग दिस जो हम लोग एल्गोरिदम यूज़ करने वाले हैं, तो जो मेथड यूज़ करने वाले हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जो आपको हमेशा ध्यान देना है, ठीक है. सो आई विल फर्स्ट टेल यू द कंडीशन, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ दिस इज़ गोइंग टू वर्क. सो द कंडीशन स्टेट्स दैट मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए, राइट. मशीन ए मीन्स देर आर 3 मशीन्स, राइट. अब ये जो ऑपरेशन है ये इनको आप मशीन्स कंसिडर कीजिए. ये जॉब्स हो गए तो ये मशीन्स हो गए, राइट. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे मशीन्स बोल रहे हैं. इट कुड बी ऑपरेशन इज ऑल्सो, राइट. सो मिनिमम टाइम ऑफ मशीन ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम टाइम ऑफ मशीन बी. तो इसका जो मिनिमम है वो इसके मैक्सिमम से ज़्यादा होना चाहिए, पहला कंडीशन, राइट. सेकेंड कंडीशन, मिनिमम ऑफ टाइम मशीन टाइम सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ मशीन टाइम बी. ये 2 कंडीशन है, ठीक है. ये 2 कंडीशन में कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है मेरा प्रॉब्लम, देन आई कैन अप्लाई दिस मेथड, राइट. एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम दिस विल बी सेटिस्फाइड, राइट. बट अगर आप ये ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, यू कैन स्विच दी कॉलम्स, राइट. आप मशीन्स को स्विच भी कर सकते हो. फॉर एग्जांपल अगर ऐसा आपका ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, आप इसको इधर शिफ्ट करके देन यू अप्लाई द रूल और उसके हिसाब से सीक्वेंसिंग कीजिए. तो यू कैन ऑल्सो डू दैट. तो इन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू कैन ईजिली सेटिस्फाई दीज 2 कंडीशंस. अब ये कंडीशंस क्या है देखो. सबसे पहले इसको स्कैन करते हैं. ये मिनिमम क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है. इसका मिनिमम इसके मैक्सिमम से ज़्यादा होना चाहिए. इसका मैक्सिमम क्या है, 8. तो 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 8, पहला कंडीशन नहीं हो रहा. सेकेंड देखते हैं, इसका जो मिनिमम है विच इज़ 8 should be greater than maximum, should be greater than or equal to maximum of this. So maximum is 8, so it is greater than but equal to, right. So it is equal to this means condition 2 satisfying. So we can apply this problem method which I am going to tell you now, ठीक है. तो ये हो गया. आपको इन दोनों में से, इन दोनों का मिनिमम जो है इसके मैक्सिमम से ज़्यादा होना चाहिए. इन, ठीक है, ये 2 कंडीशन है. इन दोनों कॉलम का कोई भी एक कॉलम अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो हमें वो मेथड को वो देन वी कैन गो हेड विद द एल्गोरिदम, राइट. सबसे पहले एल्गोरिदम क्या है, हमें 2 जो हैं इनको बेसिकली ऐड कर देना है. तो 3 कॉलम को 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है. मैं बताता हूँ कैसे. तो इसी कॉलम को मैं वापस लिखता हूँ, राइट, यहाँ पे. सो दिस इज जॉब, दिस इज टर्निंग टाइम plus threading time, correct. And this I can denote as G and this is as H, right. This could be written as knurling time plus threading time, right. अब उसको मैं जॉब्स लिख देता हूँ पहले. 1 2 3 4 5 एंड 6, करेक्ट गाइस. सो अब देखिए, टर्निंग प्लस थ्रेडिंग को ऐड करके यहाँ पे लिखना है. टर्निंग और थ्रेडिंग, 8 + 3 11 हो गया. so this becomes 11. 8 + 13 is 21, राइट. तो इस हिसाब से मैं ऐड करके यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके. सो 12 + 6 is 18, 9, 8, this is 12 and 12, करेक्ट. यहाँ पे देखेंगे. सो दिस बिकम्स 20
13, 18, 11 एंड 14। करेक्ट। तो अभी हमारे पास ये एक आ गया, ये हमारा, सी व्हाट वी हैव डन इज वी हैव क्रिएटेड एन जॉब थ्रू टू मशीन्स के प्रॉब्लम, 3 मशीन्स के प्रॉब्लम को हमने एन जॉब्स 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर दिया, राइट। नाउ वी हैव टू फॉलो द सेम लॉजिक दैट मैंने आपको इसके पहले वाले प्रॉब्लम बताया था। 1 2 3 4। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्कैन द मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू आई कैन फाइंड इज 8, राइट। 8 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, सो हम इसको जॉब 4 यहाँ पे लिखेंगे, राइट। वापस स्कैन करेंगे, सो मिनिमम इज 9, राइट। जॉब 3 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, अब वापस स्कैन करेंगे, सो मिनिमम इज 11 11, ठीक है। तो ये फर्स्ट कॉलम में, तो इसको यहाँ पे लिख दूंगा, ये सेकंड कॉलम में तो इसको लास्ट में लिख दूंगा, करेक्ट। तो इसको भी मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 18 20 12 14, सो 12 है फर्स्ट कॉलम में, तो 6 यहाँ पे लिखूँगा और उसके बाद लास्ट में बचा 2, करेक्ट। ये होने के बाद अगेन नाउ वी हैव टू ड्रॉ द सिमुलेशन और सिमुलेट द टाइम। तो आई विल राइट डाउन द ऑपरेशन। अब यहाँ पे देखिए हमने सॉल्व करने के लिए सिर्फ उसको 2 में कन्वर्ट किया था, राइट। अभी सिमुलेट करने के लिए वापस से उसे हम 3 इसमें कन्वर्ट कर देंगे, 3 ऑपरेशंस में। तो जॉब सीक्वेंस दैट वी गॉट इज 4 3 1 6 2 5, करेक्ट। ओके, सो सबसे पहला था टर्निंग ऑपरेशन। 1 सेकेंड गाइस, टर्निंग ऑपरेशन। मैं भी सिर्फ यहाँ पे जाने दीजिए, लिख देता हूँ टाइम इन एंड टाइम आउट, राइट guys. Sorry, because I have limited space, so my handwriting would be very bad. Second operation is threading. Time in and time out. And the last operation is knurling. Time in and time out. ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़ वेरी सिंपल, जॉब 4, ठीक है। अब मैं आपके लिए टाइम्स मैं बताने वाला हूँ आपको। तो जॉब 4 का जो सबसे इनिशियल टेबल में हम लोग आ जाएंगे, ये वाला टेबल, ठीक है, और इसको रेफ़र करेंगे। तो जॉब 4 के लिए तो टर्निंग टाइम सबसे पहला है 2 मिनट्स का, राइट। सो देखिए जॉब 4 है, टर्निंग टाइम इन जो रहेगा वो 0 होगा, ठीक है, और 2, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू टेक 2 मिनट्स, राइट। वो 2 मिनट बाद जाएगा थ्रेडिंग ऑपरेशन मशीन पे, ठीक है, और वो बाहर आएगा। थ्रेडिंग टाइम जो 8 का है, 1 सेकेंड, जॉब 4 में 6 मिनट्स का है, तो इट कम आउट आफ्टर 8 मिनट्स। वो 8 मिनट में थर्ड मशीन पे जाएगा। और नर्लिंग ऑपरेशन जॉब 4 का ले रहा है 12 मिनट्स, मीन्स वो 28 मिनट पे बाहर आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं जॉब 3 पे। टर्निंग मशीन कब फ्री हो रहा है? सेकेंड मिनट पे, करेक्ट। लेकिन जॉब 3 के लिए टर्निंग टाइम कितना है? 12 मिनट्स का है। 1 मिनट, जॉब 3 सॉरी 5 मिनट्स का है, तो 2 + 5 7, ठीक है, 7 वे फ्री हो जाएगा। अब 7th मिनट पे ये जो जॉब है ये सेकेंड मशीन पे जाएगा, राइट। बट ये मशीन कब फ्री हो रहा है? 8th मिनट पे, तो इन दोनों का मैक्सिमम लेंगे, ठीक है। 7th पे नहीं जाएगा, ये 8th पे जाएगा। अब जॉब 3 के लिए थ्रेडिंग ऑपरेशन कितना टाइम ले रहा है? 4 मिनट्स का, तो ये हो जाएगा 12। अब ये 12th मिनट पे यहाँ पे जाएगा, लेकिन ये मशीन फ्री नहीं है बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी फ्री ऑन 20th मिनट, तो ये 20th
20 पहले यहाँ पे लिख दूंगा। जॉब 3 के लिए नर्लिंग ऑपरेशन का टाइम देखेंगे तो वह है 9 मिनट्स का, सो 29 हो गया यहाँ पे, राइट। अब आ जाते हैं यहाँ पे जॉब 1 का टर्निंग टाइम देखते हैं। जॉब 1 का टर्निंग 3 मिनट्स का है, तो ये 10 मिनट पे मशीन 1 पे जॉब फ्री हो जाएगा। अब ये 10th पे है और ये जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है 12th मिनट, तो मैं 12th मिनट पे ये मशीन फ्री होगा, तो जॉब 1 यहाँ पे लगेगा। और जॉब 1 का जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है, जॉब 1 का जो थ्रेडिंग ऑपरेशन है वो 8 मिनट का है, तो ये है 20th मिनट पे फ्री होगा, राइट। 20th पे ये फ्री हो रहा है जॉब 1 नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, लेकिन ये मशीन 29th मिनट पे फ्री हो रहा है, तो 29 यहाँ पे लिखूँगा। जॉब 1 का नर्लिंग ऑपरेशन कितने मिनट का है, 13 मिनट्स का, मीन्स ये 39 + 3 42 मिनट पे ये ऑपरेशन ख़त्म होगा, ठीक है। मशीन 1 जो है 10th मिनट पे फ्री हो जाएगा जब जॉब 6 वहाँ पे लग जाएगा। जॉब 6 11 मिनट्स का टर्निंग टाइम है, मतलब ये 21st मिनट पे कंप्लीट होगा, ठीक है। अब ये जॉब 6 21वें मिनट पे टर्निंग ऑपरेशन कंप्लीट कर ले, ये नेक्स्ट मशीन पे जाएगा। ये मशीन 1 मिनट से खाली है बिकॉज ये 20th मिनट पे थ्रेडिंग ऑपरेशन हो गया है, ठीक है। तो ये 21st मिनट एज सुन एज वो टर्निंग ऑपरेशन हो इमीडिएटली वो थ्रेडिंग पे जाएगा। जॉब 6 का थ्रेडिंग ऑपरेशन देखते हैं कितना टाइम लेने वाला है। तो जॉब 6 का थ्रेडिंग टाइम है 1, तो ये 22 मिनट पे फ्री हो जाएगा, करेक्ट। अब ये 22 और ये 42, यहाँ पे देखिए वी हैव गॉट 20 मिनट्स ऑफ आइडल टाइम, राइट। दिस इज़ वेरी लॉन्ग टाइम विच शुड नॉट बी देयर, बट इन दिस केस वी हैव टू बेयर दिस आइडल टाइम, राइट। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए यही करना पड़ेगा। तो अब हम 42nd मिनट पे इस जॉब को लेंगे नर्लिंग ऑपरेशन के लिए। जॉब 6 का नर्लिंग है 13 मिनट्स का, तो 55 मिनट पे ये फ्री होगा, ठीक है। अब हम 21st मिनट पे जॉब 2 लगाएंगे टर्निंग ऑपरेशन के लिए। जॉब 2 के लिए 12 मिनट लगने वाला है, मीन्स इट इज़ गोइंग टू बी फ्री एट 33rd मिनट, ठीक है। ये 22वें मिनट पे ख़त्म हो जाएगा 33, तो ये 33 पे एंट्री होगा जॉब 2 थ्रेडिंग ऑपरेशन के लिए। थ्रेडिंग ऑपरेशन जॉब 2 कितना टाइम लेने वाला है, 6 मिनट्स, मीन्स ये 39th मिनट पे फ्री हो जाएगा। ये 55, तो 55 पे एंट्री होगा नेक्स्ट जॉब 2 नर्लिंग ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो जॉब 2 का नर्लिंग 14 मिनट्स का टाइम लेने वाला है, मीन्स दिस गोइंग टू कंप्लीटेड एट 69, ठीक है। 33rd मिनट पे जॉब 5 एंट्री कर लेगा टर्निंग ऑपरेशन के लिए। टर्निंग का टाइम जॉब 5 लेने वाला है 9, मीन्स 42 पे ये कंप्लीट होगा, करेक्ट। 42 39, सो मैक्सिमम इज दिस, सो 42 पे एंट्री होगा ये। 3 मिनट बाद थ्रेडिंग ऑपरेशन शुरू होगा। ये मशीन 3 मिनट तक आइडियल टाइम रहेगा, राइट। अब जॉब 5 का थ्रेडिंग ऑपरेशन देखते हैं, 3 मिनट का, मीन्स 45 पे ये फ्री हो जाएगा, राइट। उसके बाद लेकिन मैक्सिमम ये तो 69th मिनट पे ये फ्री होगा, मशीन फ्री होगा जॉब 5 जब लगेगा। और जॉब 5 नर्लिंग टाइम लेने वाला 8 मिनट्स, मीन्स 77 पे टोटल ऑपरेशन होगा, राइट। सो टोटल साइकिल टाइम और टोटल टाइम टेकन टू फॉर प्रोसेसिंग is 77 minutes, right? सो गाइज इसके बाद व्हाट वी कैन डू, अगर हम लोग सोल्यूशन निकालने के बाद वी कैन फाइंड द ऑप्टिमल आइडल टाइम फॉर ईच ऑफ द मशीन्स। तो सबसे पहले मशीन 1 का आइडल टाइम देख लेते हैं। सो बेसिकली मशीन 1 आइडल 0 से 2 7, ठीक है, 10 21 एंड 3, सो देर आर नो गैप्स, बट देर इज़ अ लॉन्ग गैप विच इज़ आफ्टर 42nd मिनट, ठीक है। 77th मिनट पे पूरा ऑपरेशन होने वाला है, पर 42 पे मेरा मशीन 1 खाली हो गया, राइट। सो मैं मशीन या टर्निंग मशीन जो है टर्निंग मशीन का जो आइडल टाइम है वो कितना होगा, 77 - 42, करेक्ट। सो इट कम्स आउट टू बी 35 मिनट्स।
ठीक है। सिमिलरली अभी हम लोग देखेंगे थ्रेडिंग के लिए। थ्रेडिंग के लिए टोटल कितना आइडल टाइम है। सो सी 12, यहाँ पे 1 मिनट का आइडल टाइम है। 1 सेकेंड, यहाँ पे पहला तो इनिशियली 2 मिनट का आइडल टाइम है, और उसके बाद 20 से 21 1 मिनट का आइडल टाइम है। फिर यहाँ पे 11 मिनट्स हैं, यहाँ पे 3 मिनट है, राइट। और ये 45 77, अगर इसका डिफरेंस निकालेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 42 33, सॉरी 32, राइट। सो टोटल is 49, A1 35, 43, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग नॉलिंग ऑपरेशन का आइडल टाइम देखेंगे, सो इनिश पहले 8 मिनट, तो टोटल उसके बाद कोई आइडल टाइम नहीं है, राइट। सो मशीन्स के आइडल टाइम, टोटल मशीन आइडल टाइम अगर आपको पूछा गया तो यू कैन ऐड ऑल दिस एंड गिव इट, और अदरवाइज इंडिविजुअल मशीन की आइडल टाइम पूछे तो दीज आर दी मशीन आइडल टाइम, राइट। सो ऑल द ऑपरेशन विल गेट completed in 77 minutes. So this is the procedure that you need to follow while solving for n jobs in through 3 machines, right. So this is for this lecture. We are going to see next different problem in the next lecture, right. Thank you everyone.